Hello students, welcome to English Reader class. Today we will discuss our literature, the chapter, the story of my life. We already discussed half of the chapter. Now we will start from here. I am told that while I was still in long dress, I showed many signs of an eager, self-asserting disposition. Self-asserting disposition means confident, full of confidence. Everything that I saw other people do, I insisted upon imitating. At 6 months, I could pipe out how we. And one day, I attract everyone's attention by saying tea, 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 quite plainly. Even after my illness, I remembered one of the words I had learned in these early months. It was the word water, and I continued to make some sound for the word after all other speech was lost. I ceased making the sound wah wah only when I learned to spell the word. Here is ceased means stopped. Pipe out mean speak. इस पैराग्राफ में वो बताना चाहती है कि वो एक लॉन्ग ड्रेस उसने पहनी हुई थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा साइन शो करती थी और वो साइंस के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी. वो जो दूसरे लोगों को देखती थी, सुनती थी, उनको समझती थी. जब वो 6 मंथ की थी तो उसने कुछ बोलना सीखा था. हाउ डू यू, दैट मीन्स हाउ डी वाई. एंड वन डे, कुछ एक दिन वो सबको अट्रैक्ट करती थी. अब कैसे बोल के टी टी टी, बहुत आराम से. जब वो बीमार थी उसको ये वर्ड याद था कि वो उन दिनों में कौन से वर्ड बोला करती थी और उसके हिसाब से वो वर्ड को बोलना सीखती थी. एंड द अदर वर्ड वॉज वाटर, जो उसे याद था. उसको पता था कि कैसे उसको बोलते हैं, बट वो उसको बोलना भूल गई थी जब वो बीमार हुई थी. और उसने उसको कैसे बोलना शुरू किया था, वाह वाह. तब वो सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को बोल पाती थी, वो प्रॉपर वाटर नहीं बोल पाती थी. They tell me I walked the day I was a year old. My mother had just taken me out of the bathtub and was holding me in her lap when I was suddenly attacked by the flickering. Here is flickering mean moving with small quick movements, shadow of leaves that danced in the sunlight on the smooth floor. I slipped from my mother's lap and almost ran toward them. I fell down and cried for her to take me up in her arms. इस पैराग्राफ में उसने बताया कि जब वो कुछ 1 साल की थी तब उसकी मदर उसको बाथटब से नहाकर लेकर अपनी गोद में बैठा रही थे. तब वो अचानक अट्रैक्ट हुए. कुछ स्मॉल, बहुत जल्दी जल्दी कुछ मूवमेंट्स हो रही थी, उनकी शैडो दिख रही थी उनको. जब उसने देखा सनलाइट थी, सनलाइट वो उसको फ्लोर पे दिख रही थी कि कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही है. वो अपनी मदर की गोद से स्लैप्ड हुई, मतलब उतरी और बाहर को दौड़ी. उसने देखा और वो गिर गई और उसके शायद चोट भी लगी और उसकी मदर ने उसको उठा लिया अपनी आर्म्स में. These happy days did not last long. One brief spring musical with the song of robin and mockingbird, one summer rich in fruit and roses, one autumn of gold and sunsons sped by and left their gifts at the feet of an eager, delighted child. Then in the month of February came the illness which closed my eyes and ears and plunged me into the unconsciousness of newborn baby. The call it
acute congestion. Congestion means blockage of the stomach and brain. The doctor thought I could not live. Early one morning, however, the fever left me as suddenly and my stressfully as it had come. There was great rejoicing in the family that morning, but no one, not even the doctor, knew that I should never see or hear again. इस पैराग्राफ में उसने बताया कि ये सब जो उसकी खुशियाँ थी वो ये जो दिन थे वो ज़्यादा देर नहीं रहने वाले थे. एक स्प्रिंग के मौसम में म्यूज़िकल था, सॉन्ग था, रॉबिन एंड मॉकिंग बर्ड्स, वो जो बर्ड चहलाते हैं उनको बोल रही है. समर रिच इन फ्रूट्स एंड रोजेस, समर होती है वो फ्रूट्स के साथ और रोजेस के साथ भरी हुई थी. जो ऑटमन होती है वो गोल्ड होती है. जब हम पतझड़ आती है तो उसे ऑटमन बोलते हैं. समर को गर्मी में बोलते हैं. स्प्रिंग को जो बारिश के मौसम में होते हैं. क्रिम स्पेंड एंड जो उसके जो छोटे छोटे से जो उसने ऑटोमन्स देखी हुई थी, सभी सीजन्स देखे थे, वो सब नहीं रहने वाले थे ज़्यादा टाइम के लिए. इन द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ में उसको इसके पास इलनेस बहुत क्लोज थी. उसका आईज एंड ईयर्स वॉज अनकॉन्शियस ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी. जब उसके आईज एंड ईयर्स बिल्कुल वैसे थे जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी के होते थे. दे कॉल इट कंजेशन. उसको उसके साथ ब्लॉकेज हो सकी थी उसके स्टमक में एंड ब्रेन में, उसको कुछ इलनेस की वजह से. डॉक्टर ने सोचा कि शी वॉज नॉट लिव मोर, कि वो ज़्यादा टाइम नहीं जी सकती. वन अर्ली मॉर्निंग, जब वो सुबह एक दिन ऐसा हुआ कि उसको अचानक से फीवर हट गया और उसने देखा कि उसकी टोटली फैमिली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा देख रही थी कि इसकी प्रॉब्लम को क्या होगा. इवन कि डॉक्टर भी ये नहीं जानता था कि वो सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती, मगर वो अब बीमार नहीं थी. इस बीमारी की वजह से वो अपनी सुनने और देखने दोनों ही खो चुकी थी. तो इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे उसने अपनी लाइफ को करेज किया, कैसे उसने अपनी सभी चीज़ों को मैनेज किया डेफ और ब्लाइंड होते हुए. नाउ वी डिस्कस द असाइनमेंट, exercise assignment which we already done. Now we will do rest of the part. We already done 4th questions. Next one is, what were the signs that show Helen's Eggers self-asserting disposition? इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हाउ हेलन कैसे शो करती थी अपने जो उसके भावनाएं थी, कैसे वो बोलती थी. सिंस शी वॉज अ बेबी, हेलन शोड many signs of an Eggers self-asserting disposition. She insisted on imitations everything that other people did. At the age of 6 months, she could say howdy ye. One day, she said TTT quite clearly and surprised everyone. वो वैसे ही बोला करती थी जैसे कि और लोग बोलते थे. जब वो 6 मंथ की थी तब वो क्या कहना सीखी थी, हाउ डू ये, जिसका मतलब जिसे हम बोलते हैं हाउ डू यू. और क्या बोला था उसने, टी टी टी, जो कि उसने बहुत क्लियरली बोला था और सबको सरप्राइज कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन इंस्टेंस ऑफ द हैप्पी डेज दैट exist before Helen fell ill. वो उसके कौन से दिन थे जो उसकी इलनेस के पहले थे, जो उसे खुशी देते थे. Was the day that she first walked. She was a year old. Her mother had taken her out of the bathtub and was holding her on her lap. Helen was attracted by the flickering shadows of the leaves on the smooth floor. She almost ran towards the shadows in her excitement and fell down. This was the first walk of her life. इसमें उसने बताया है कि हेलन की
उसके बीमार होने पहले उसने क्या किया था, जब उसकी मदर एक दिन उसको नहाकर टब से बाहर लेके आ रही थी और अपनी गोद में लेके बैठी थी, तो वो अचानक कुछ शैडो से अट्रैक्ट हुई जो कि बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, और वो जो क्या था, लीव्स का शैडो था, फ्लोर पे आ रहा था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और वो भाग के जा रही थी। इस एक्साइटमेंट में वो गिर गई। तो ये उसकी फर्स्ट वॉक थी लाइफ की, जो वो अ ईयर ओल्ड थी। The next one is describe the various seasons that Helen enjoyed before the illness attacked her. वो सब सीज़न डिस्क्राइब करने हैं जब वो बीमार नहीं हुई थी, उसने इंजॉय किए थे। बिफोर हर इलनेस केम हेलन enjoyed a brief spring which was musical with the songs of robins and mocking birds, a summer rich in fruit and roses, and an autumn which fell the gold and crimson on leaves at her foot. Then the illness came in the month of February. उसने कौन कौन से सीज़न बताए थे? स्प्रिंग जो म्यूज़िकल थे, सॉन्ग्स के साथ थे और उसमें वर्ड चहचलाते थे, और समर जो कि फुल ऑफ फ्रूट्स एंड रोजेस के साथ फुल होती है, एंड ऑटमन यहाँ पे लीव्स जो कि सुनहरे पत्तों के साथ फुल होती है, और ये सब उसकी इलनेस के पहले हुआ था फरवरी के। वो कब बीमार हुई थी? फरवरी में। The next one is, what was the illness that attacked Helen called? What was its effect? जो उसकी illness थी उसको हेलन क्या बोलती थी और उसने उस पर क्या इफ़ेक्ट किया था? The illness that attacked Helen was called acute congestion of the stomach and brain by the doctors. The illness left suddenly one day, but due to it, Helen lost her ability to see and hear. हेलन क्या कह रही है, उसने बताया कि जब उसको ये कंजक्शन हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी उसके स्टमक एंड ब्रेन में, जो कि डॉक्टर बोल रहे हैं इस इलनेस ने अचानक एक दिन उसको छोड़ दिया था, बट वो इसमें अपने देखने और सुनने दोनों की एबिलिटी खो चुकी थी। Now we will discuss extract question answers. First, the task of writing an autobiography is a difficult one. Question number 1A, who says the above word? ये word किसने बोले थे? The above words are spoken by the author Helen Adams. ये word Helen Adams ने बोले थे, जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी को लिखना डिफ़िकल्ट था। ये वर्ड उसके अपने आप बोले हुए थे। द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज द टास्क ऑफ राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी अ डिफ़िकल्ट वन? ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने आप अपने जीवन के बारे में लिखना मुश्किल क्यों होता है? The task of writing an autobiography is a difficult one because while many of the experiences are clear and vivid in our memory, most of the details of the joys and sorrows of childhood and forgotten. In the excitement of adult life, the incidents of childhood which are visual lost their clarity in the memory. उसने बोला कि ऑटोबायोग्राफी लिखना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं वो क्लियर नहीं थे उसकी मेमोरी में, और मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ उसकी जो खुशियाँ और दुख थे वो उसके बचपन के वो भूल चुकी थी, और उसकी जो अडल्ट लाइफ थी, उसके जो इंसिडेंट थे, उसके चाइल्डहुड के बचपन के जो उसके इंसिडेंट थे वो बहुत सारे उसकी मेमोरी से लॉस्ट हो चुके थे, जिसके लिए उसे लग रहा था कि वो ऑटोबायोग्राफी लिखना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। हाउ डज द स्पीकर डिसाइड टू प्रेजेंट इट? स्पीकर ने मतलब ऑथर ने उसको कैसे प्रेजेंट किया था? द स्पीकर डिसाइडेड टू प्रेजेंट इट इन अ सीरीज ऑफ स्केचेस. शी डिस्क्राइब्स ओनली द एपिसोड्स दैट seems to her to be the most interesting and important. This, she hopes, will help her make her work less tedious. उसने अपनी लाइफ के बारे में कैसे प्रेजेंट किया था, कैसे उसने
क्या सोच के डिसाइड किया था कि वो कैसे प्रेजेंट करेगी। उसने ये सोचा था कि वो इन सबको एक स्केचेस के थ्रू डिस्क्राइब करेगी, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो उसके एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो एपिसोड्स थे वो उसको डिस्क्राइब करेगी कि उसको हेल्प मिलेगी इन सबको और उसका वर्कलोड भी कम हो जाएगा इसके थ्रू कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रही है उसको। द नेक्स्ट वन इज TTT. The question is, who said these words? Helen Keller said these words. ये वर्ड किसने बोले थे? हेलन केलर ने, जो कि ऑथर है। When exactly were these words spoken? ये वर्ड exactly कब बोले गए थे? These words were spoken by Helen one day when she was about 6 months old. When exactly were these words spoken? ये वर्ड्स कब बोले गए थे? These words were spoken by Helen. हेलन के थ्रू बोले गए थे एक दिन जब वो 6 मंथ की थी। What was everyone's reaction to the above words? जब सबने ये वर्ड सुने थे तो उनका रिएक्शन क्या था? When Helen spoke these words, everyone's attention was attracted to her as she was just 6 months old at that one time. जब उसने ये वर्ड बोले थे तो सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि वो जब 6 मंथ की थी तब उसने ये वर्ड बोलना सीख लिया था। I continued to make some sound for that word after all other speech was lost. What is the word being referred to in the above line? ये वर्ड किसको रेफर किए गए थे जो उसके यहाँ पे हम जिसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या था? आई कंटिन्यू मेक सम साउंड, ये सब कुछ वर्ड थे जिसके बारे में वो बोलना भूल चुकी थी और उसने कैसे उनको कंटिन्यू किया था। द वर्ड बीइंग रेफर टू इन अबव लाइन इज वाटर। वो क्या वर्ड था जिसके बारे में वो बोलना भूल चुकी थी? वाटर। द सेकेंड वन इज व्हाट साउंड डिड हेलन मेक फॉर द वर्ड। वो कैसे बोला करती थी इन वर्ड को? आफ्टर हर इलनेस व्हेन शी हैड लॉस्ट हर एबिलिटी टू हियर and had lost all other speech, she could still make the sound wah wah for the word water. तो जब उसकी इलनेस के बाद जो अपने सुनने और बोलने की एबिलिटी खो चुकी थी तब वो इन वर्ड को वाटर को कैसे बोला करती थी? वो तो वो इन शब्द को ऐसे प्रोनाउंस करती थी। Why was Helen's speech lost? वो अपनी स्पीच लॉस्ट क्यों कर चुकी थी? हेलन स्पीच वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ एन इलनेस शी हैड एज अ चाइल्ड। द डॉक्टर्स हैड डायग्नाइज्ड द इलनेस एज द एक्यूट कंजक्शन ऑफ स्टमक एंड ब्रेन। जब वो बीमार हुई, जब वो बहुत छोटी थी तो वो अपने बोलने और सुनने की एबिलिटी खो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि उसको कंजक्शन हो चुकी है उसके स्टमक एंड ब्रेन में, मतलब उसके ब्रेन एंड स्टमक में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपना स्पीच और हियर सब कुछ खो चुकी थी। These are the vocabulary. Prefix. A prefix is added to the beginning of the word. It changes the meaning of the word. The word element on is a prefix. प्रीफिक्स का मतलब होता है कि हम कुछ वर्ड जो कि एक वर्ड लेते हैं, हम उसके स्टार्टिंग में एक वर्ड 2 वर्ड्स मतलब इसमें ऐड किए गए हैं हमने 2 और 3 वर्ड्स में भी 4 भी हो सकते हैं, उनको ऐड किया और उन वर्ड को ऐड करने के बाद उनका मीनिंग चेंज होता है। यहाँ पे हमें था IL, हमने उसके वर्ड ढूंढे इलीगल और इलॉजिकल, और सेकंड वन था एक्सहेल एक्सटेंड, ab absolute abnormal, be beside behold, dissatisfied disobey, impossible immature, prepone and prejudice, postpone, postscript, unhappy,
unlikely, for, foretell, and forehead. In, indefinite and infinitive, inter, international, and intact. The other one is suffix. और suffix words वो होते हैं जिनको हम word के end में use करते हैं. First, ist, cyclist and dentist. Here are the ist, ist and ist, and ness, happiness and kindness, sion, illusion and vision, ism, partism and capitalism, meant, achievement, disappointment, dental, dental, arrival, less, careless, helpless, ly, gently and rudely, reposer, driver, or conductor, executor, ish, foolish, childish, full, blissful and cheerful. You guys take these words and you can write your own words, whatever you think and you can understand. Hope you guys understand all the chapter and all the exercise we already done. Have a nice day. Thank you.